First up, taking you straight to Jammu and Kashmir, at least 3 people lost their lives after the cloudburst struck the Seribagna area of Ramban district on Sunday. Sources have said that the cloudburst occurred during the early hours of the day. The cloudburst triggered flash floods and landslides, causing widespread damage in the area. Rescue teams were rushed to the spot shortly after the incident transpired. A massive landslide triggered by continuous rainfall severely impacted a section of the Jammu-Srinagar National Highway in Ramban district, bringing traffic in that area to a complete standstill. In fact, these visuals from the site depict a chaotic scene. Vehicles can be seen submerged in sludge, roofs torn apart, and debris scattered across the road. Now, the efforts are currently underway to assess the full extent of the damage. Authorities are also working to clear the debris and restore connectivity in the area. Meanwhile, travelers have been strictly advised to avoid unnecessary movement and stay updated through the official channels. Now, reacting to this incident, Union Minister Jitendra Singh has also taken to platform X and has written, and I'm going to quote the lines from his post here, that there was a heavy hailstorm, multiple landslides and fast winds throughout the night in the Ramban region, including the area surrounding the Ramban town. The national highway stands blocked, and unfortunately, there have been 3 casualties and loss of property for a couple of families. I'm in constant touch with Deputy Commissioner Mr. Basir ul Haq Chaudhary. The district administration reserves appreciation for timely and prompt action, which helps save several precious lives. Every kind of relief, both financial and otherwise, is being provided. The DC has been conveyed that if need be, whatever more is required can be provided from MP's personal resources as well. The request is not to panic. We shall all together overcome this natural calamity. Meanwhile, a cloudburst has also been reported near Nageshwari region in Kishtwar of Jammu and Kashmir. देखिए, हमने सभी पुलिस स्टेशन को सतर्क कर दिया गया है। मैन नुकसान जो है रामबन के अंदर हुआ है, जिसमें कुछ कमर्शियल और कुछ रेजिडेंशियल हाउसेस को नुकसान पहुंचा है, और उसके अलावा नेशनल हाईवे यहाँ पे ब्लॉक हुआ है। उसके अलावा धर्मकुंड के इलाके में भी पुलिस ने तकरीबन 100 लोगों को रेस्क्यू किया है और उनको पहले सेफर लोकेशन पे पहुंचाया था। हॉस्पिटल्स में कुछ उनको भेजा था और अपने स्कूलों में उनको भर्ती किया था, लेकिन अभी वो अपने रिश्तेदारों के घर चले गए हैं। तो उसके अलावा बनिहाल में भी एक हमारी पुलिस ने कुछ रेस्क्यू ऑपरेशन किए थे, जिसमें एक फैमिली बीच में फंसी थी, उसको रेस्क्यू किया गया। उसके अलावा 3 डेथ्स जो हमारी बागना विलेज में अनफॉर्चुनेट 3 डेथ हुई हैं, जो मकान के दब जाने से हुई हैं। 2 अलग अलग इंसिडेंट से। उसके अलावा नेशनल हाईवे के ऊपर भी हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चल रहा है। ये देखा जा रहा है कि कहाँ पे नुकसान हो और किस टाइप से कार्रवाई करनी है। हमारी पुलिस जो है पूरी रात से रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई है और पूरी तरह से सतर्क है, और कोई भी स्थिति आए उसको मजबूती से निपटने के लिए तैयार है। इस समय मैं मौजूद हूँ रामबन में, ग्राउंड जीरो पर हम मौजूद हैं, और यहाँ पे आप देखिए कि किस तरीके से प्राकृतिक आपदा आई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये एक वक्त जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे हुआ करता था और रामबन की मेन बाजार थी, लेकिन जिस तरीके से कल बारिश गिरी और यहाँ पे क्लाउड बर्स्ट हुआ और उसके बाद जो है पूरा मलबा जो है वो रोड पर आ गया। गाड़ियाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मलबे के अंदर फंसी हुई हैं। हालांकि फ़िलहाल यातायात के लिए जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद कर दिया गया है। गाड़ियाँ आप देखिए किन हालात में यहाँ पर है, और अंदाज़ा लगाइए कि जब इस रोड के ऊपर मलबा आया तो उस वक्त हालात किस तरीके की होंगी। कभी देखा ही नहीं, ये पहली बार मैंने देखा इतना फ्लड आया। को 20-25 साल पहले एक बार आया था, उसके बाद यह आज आया। ये जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे था ना? यहाँ जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे। ये तो पूरा तबाह हो गया। ये यहाँ से बुरी हालत है। आगे मैं आगे से पैदल आ रहा हूँ। कितने किलोमीटर से पैदल? मैं आया 3 किलोमीटर से पैदल। यही हालात है? यही हालात है आगे तक।
कैला मोड़ से लेकर यहाँ तक मैं आया। हाँ बताइए। क्या हुआ है, मतलब गाड़ियों के ऊपर से चल रही है, ऊपर से रास्ता है, अच्छा उधर आदमी फंसे हुए हैं। अभी अब एनडीआरएफ की टीम अभी है, रात के 2 बजे से उधर आदमी फंसे हैं डिगडोल में। डिगडोल में। मतलब बेड की गाड़ी के ऊपर आ गया है, उधर बेड भी उसी के नीचे है, मलबे के नीचे, गाड़ी अभी मलबे के नीचे है। आप भी यहाँ से सर? हाँ ये भी यहाँ से, यहाँ पहले भी आता था फ्लड, आज से पहले आया था 13-14 ऐसी प्राकृतिक आपदा आया आया 2 दफा आया यहाँ। शान पैलेस होटल था, लेकिन इतना नुकसान? इतना नुकसान, गाड़ियाँ नहीं, कुछ नहीं। आज तो गाड़ियाँ दब ये गई। पूरी मार्केट कितनी है, कितनी होंगी दुकानें यहाँ से इस बेल्ट में, हाँ। इस बेल्ट में कोई 20-22 दुकान जहाँ पे हम मलबा देख रहे हैं इसके पास भी दुकानें थी? इसके नीचे ये बस ये जो नजर आती है ना ओपनली, दबी कोई नहीं है, ओपन में है ये सारा। आप यहीं पे थे, क्या हुआ था सर? कितने मैं बजे का वाकया क्या हुआ था? मैं यहाँ पे 9 बजे आ गया था, जाम लगा हो तो हमने होटल ले लिया। तो 4 बजे उठ के मैं यहाँ पे जब आया हाँ, सुबह के? सुबह के 4 बजे, तो थोड़ा थोड़ा एकदम से जैसे पानी निकलता ना बाहर को, तो ऐसे पानी निकला था थोड़ा थोड़ा। ठीक है। तो मैंने देखा कि पानी निकल रहा है, हाँ। तो मैं अंदर फैमिली को बताया। हाँ। मेरा बच्चा था, मेरी माँ थी और है ना, ठीक तो है। बीवी, हमने जो देखा तो मैं अंदर गया। मैं कहा ऐसे पानी होगा, कोई चक्कर नहीं, कुछ नहीं होगा, ऐसे थोड़ा बहुत होगा। हाँ। तो दोबारा देखा तो पड़ गया पानी मेरी गाड़ी के पास इतना जैसे ये थोड़ा थोड़ा आने लगा कुछ मलबा। हमें तो आईडी नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मैंने होटल वालों को बताई ये चीज़, नीचे आके मैंने शोर मचाया कि मैं क्या बाहर निकलो भाई, कुछ हो रहा है ऐसे। तो उनको वो बाज मार के जैसे ही मैं आया ऊपर, दोबारा आगे आके अपने कमरे में आके बाहर देखा मैंने, फिर वो तब तक तो इतना भर गया ये। अच्छा। तो फिर मैंने सारी फैमिली को उठाया, सारे दरवाजे खटकाए, सारे जितने थे यहाँ पे, जो मेरे को लगा कि हाँ भाई निकलो बाहर। तब तक ये होटल वाले भी आ गए और ये इधर उधर भाग रहे हैं कि कहाँ जाएं कहाँ नहीं जाएं। क्या हुआ था? सर मैं कैसे बयां करूं सर। आप कहाँ से आए थे? मैं जम्मू से आया था, श्रीनगर जा रहा था सर। यात्री है वो? हाँ जी हाँ जी। हाँ। मैं श्रीनगर जा रहा था, तो मैंने सोचा कि रात का टाइम है, गाड़ी तो चल नहीं पाएगी, बारिश आ रही थी, 8-9 बजे की बात है। फिर मैंने सोचा कि यहीं से टर्न लेके होटल ले लेते हैं रात को सर यहाँ पे। इसी होटल में थे आप? इसी होटल में सर, रूम नंबर 115 में था मैं। अच्छा, इसी फिर? होटल में सर। सर रात का मंजर मैं कैसे अपने मुंह से बयां करूं सर, आप रूह कांप जा रही है सर। मैं कैसे बताऊं आपको वो चीज़ें, वो मंजर। रात को सर 3 बजे बारिश तो आ रही थी, ओले भी गिर रहे थे, इतने बड़े बड़े ओले वगैरह भी गिर रहे थे। उसके बाद अचानक से आवाज़ आई, तो मैं नीचे आया और होटल वालों ने भी बाकी लोगों को निकाला। नीचे आया तो सर नीचे से एकदम पानी स्टार्ट हो गया आना, पानी स्टार्ट हो गया, ऊपर वाली साइड भरने लगा फ्लोर में। और सर मैं 2nd फ्लोर पे था, आप देख सकते हो 2nd फ्लोर, 1st फ्लोर भी मतलब बचा ही नहीं है सर, 2nd फ्लोर। और उसके बाद सर जो लोग थे, हमने दरवाजे दरवाजे तोड़े, बाकी लोगों को अंदर से बाहर निकाला। यहाँ पर कई गाड़ियां हैं जो इस वक्त भी दबी हुई है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से तबाही का मंजर इस इलाके में आया है और लगातार जो प्रशासन है वो युद्ध स्तर पर अब काम कर रहा है ताकि इस पूरे इलाके को क्लियर किया जा सके। इस समय मैं मौजूद हूँ जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पे। यहाँ पे पूरी तरीके से जो प्राकृतिक आपदा है वो यहाँ पर आई है और सेना किस तरीके से यहाँ पर मदद कर रही है ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। फर्स्ट एड किट भी यहाँ पर रखी गई है ताकि अगर कोई भी यहाँ पर आता है, कोई माइनर इंजरी होती है तो उसको यहाँ पर फर्स्ट एड किट दी जा सके। उसके साथ जब भारतीय सेना की तरफ से यहाँ पर जो खाना है वो भी लोगों के लिए रखा गया है क्योंकि कई घंटे से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद है और ऐसे में सेना की अगर बात की जाए तो सेना की तरफ से यहाँ पर नेशनल हाईवे पर जो लंगर है वो लगाया गया है ताकि लोगों की यहाँ पर मदद की जा सके। भारतीय सेना हमेशा से ही आवाम के लिए, लोगों के लिए यहाँ पर बढ़ चढ़कर आगे आती है ताकि लोग जो हैं उनकी थोड़ी सी मदद जो है वो यहाँ पर की जा सके। कई घंटे से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पूरी तरीके से बंद है और ऐसे में सेना की तरफ से यहाँ पर जो लंगर है वो भी लगाया गया है और यहाँ पे जो फर्स्ट एड किट है वो भी यहाँ पर लगाया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सेना के जवान जो हैं वो यहाँ पर पूरी तरीके से लोगों की मदद कर रहे हैं। फर्स्ट एड किट जो है वो यहाँ पर दी गई है क्योंकि कई घंटों से लोग जो है वो पैदल भी चल रहे हैं इस हाईवे पे क्योंकि जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद है, प्राकृतिक आपदा आई है। ऐसे में सेना की प्राथमिकता ये है कि लोग जो है वो अगर यहाँ पर फंसे हैं, कई घंटों से फंसे हैं तो उनकी यहाँ पर थोड़ी सी मदद की जा सके। And do stay tuned to News 9 for all the latest updates that are coming in from Ramban.